Hello guys, I hope you all are doing well. My name is Amit Chamereddy. In this video, we will learn about historiography, Indian tradition. In this lesson, we will learn about historiography in the ancient period. In this particular point, we will learn about how our ancestors preserved memories, whatever social transitions that took place, how they preserved it. We will talk about that. Then, historiography in the medieval period. Okay. Now, historiography in the medieval period. In this point, we will talk about some historians who wrote the history of that contemporary period, like Kalana, who wrote history of kings of Kashmir, and then Ziauddin Barani, who wrote about Muslim rulers and whatever particular things happened during that period, and then Abul Fazl and also Bakhar. We will talk about these particular points. Then last is historiography in the modern period. In this particular point, we will talk about the history that is written on India by the British historians, and this history was written with an intention, with a prejudice in the mind. They wanted to create a false or fake picture in front of the world of India. They wanted to show the world that Indian people are not cultured, and that's why rule by the British on India is justified. They wanted to justify the rule of British people on India, and they wanted to tell the world that Indian people are not cultured. These people do not have any particular history. They wanted to create this kind of false history in front of the world. So we'll talk about this also, and we'll also talk about some historians who tried to undo, who tried to write correct history, and they tried to present a true picture of India in front of the world. We will talk about this in historiography in the modern period. But before we begin, I would like to thank you for subscribing my channel, and if you have not, then please do it, because your support and encouragement will make me bring more videos like this. And also click on the bell icon, which because of that you will never miss an update. So our first point in this lesson is historiography in the ancient period. Now, in ancient India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore, also memories of social transitions, were preserved with the help of oral recitals. Means प्राचीन भारत में जो मेमोरीज थी या फिर जो घटनाएं घटी, उनको हमारे एंसेस्टर्स ने या फिर माइथोलॉजिकल लोर यानी कि एक पर्टिकुलर प्रकार की नॉलेज, इनको या फिर मेमोरीज को, कुछ घटनाओं की, उन्होंने उसको प्रिजर्व किया ओरल रिसाइटल से. यानी कि जैसे आप पोएम्स याद करते हैं, वैसे उन्होंने ओरली रिसाइट किया उनको. उस समय लिखने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी. इस तरह से एंशियंट पीरियड की हिस्टोरियोग्राफी जो है उसको एंशियंट पीरियड में लिखा गया. इसके अलावा अगर हम देखें तो द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हरप्पा सील्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium BCE, or perhaps before that. However, Harappan script not yet successfully deciphered. देखिए, जो इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब किसी बिल्डिंग की दीवार पर कुछ लिखना, या फिर किसी बुक वगैरह में लिखना, या फिर किसी मेटल की चीज़ पर कुछ लिखना, ये आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर हरप्पा की सील्स दिखाई गई हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो एक स्क्रिप्ट है, हरप्पन स्क्रिप्ट, ये वाली,
ये जो है वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो इनको जो है इनकी ये जो हमें मिली हैं उसके वजह से हम इस बात का पता लगा पाए कि थर्ड मिलेनियम बीसी में, यानी कि बिफोर कॉमन एरा, थर्ड मिलेनियम में हम इंडियंस ने लिखने की कला जो है उसको अवगत कर लिया था। यानी कि हमें उस वक्त लिखने की कला मालूम थी, लेकिन उस वक्त कोई कागज़ या फिर लिखने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए दीवारों पर जो है बिल्डिंग्स की जो है ये वर्ड्स वगैरह जो है लिखे जाते थे, या फिर जो घटनाएं उन्हें इम्पोर्टेंट लगती थी उन्हें लिखा जाता था। और हड़प्पा की जो सील्स है या जो दूसरे आर्टिफैक्ट्स हैं, यानी कि कुछ कलाकृतियाँ, उनसे हमें पता चलता है इस बारे में। लेकिन हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो ये लिखा गया है सब, इसे अभी तक जो है सक्सेसफुली डिसाइफर नहीं किया जा सका है। अभी डिसाइफर करना यानी क्या, यानी कि उसका आज की भाषा में अर्थ मालूम करना। ठीक है, उसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। हम ये तो जानते हैं कि कुछ लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग हमें अभी तक नहीं पता है। अभी एंशिएंट पीरियड में, इन द एंशिएंट पीरियड द अर्लीस्ट नोन रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर was found. Earliest known written document in India are in the form of inscriptions. They are dated to 3rd century BCE, and that is Emperor Ashok Maurya's time. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. देखिए, जो सबसे पहले के, जिसके बारे में हमें ठोस सबूतों के आधार पे हमें पता है, जो सबसे पुराने जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं और जो हिस्टोरिकल नेचर के हैं, वो हमें मिले हैं इंस्क्रिप्शंस के रूप में, हमें वो मिले हैं। अभी इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस यानी पत्थरों पर वगैरह कुछ लिखा हुआ होना, जैसे आप ये दो पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो इनको जांचने के बाद में ये पता लगा है कि ये बहुत पुराने हैं। और कितने पुराने हैं ये 3rd सेंचुरी BCE के हैं। पुराने, बहुत पुराने हैं, 3rd सेंचुरी BCE के। और ये कब के हैं? ये पहचाना गया है कि ये अशोक मौर्य, जो सम्राट अशोक मौर्य थे हमारे भारत के, उनके समय के ये जो है इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं। उनके जो एडिक्ट्स थे, जो एडिक्ट्स यानी क्या, कोई ऑफिशियल ऑर्डर या फिर किसी राजा की तरफ से दिया गया आदेश, इनको जो है जो नेचुरल रॉक से पत्थर होते हैं या फिर कुछ पत्थर से बनाई गई कोई बिल्डिंग के कोई पिलर्स हैं, उन पर जो है ये एडिक्ट्स जो हैं वो लिखे हुए थे। From the 1st century CE, inscriptions begin to occur on coins, metal images, sculptures, and also on copper plates. We get to know about the dates of various kings and dynastic genealogies, territorial extent, administration of various empires and kingdoms, and also important political events, social organizations, climate, famines, etc. of the respective time. अभी देखिए, जो 1st सेंचुरी कॉमन एरा है, तब से जो है उसके बाद में हमें जो इंस्क्रिप्शंस है वो सिर्फ दीवारों पर या फिर किसी स्टोन की पिलर्स पर या फिर कोई पत्थरों पर लिखे हुए नहीं मिले। इसके बाद में कुछ हमें नई जानकारी मिली है, और वो मिली है हमें कॉइन्स से या फिर कोई मेटल की इमेजेस हैं। देखिए, कॉइन्स हैं, मेटल की इमेजेस हैं, इसके अलावा जो स्कल्पचर्स हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कॉपर प्लेट्स हैं। ठीक है, इन पर जो है हमें इंफॉर्मेशन जो है या फिर कोई लिखा हुआ कुछ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा हमें इनसे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे कि डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स, अलग अलग राजाओं के रूल का वक्त हमें पता चलता है, समय। इसके अलावा डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डायनेस्टी यानी राजघराना वो कब से कब तक रूल में था, और उस राजघराने में कौन कौन से राजा होकर गए। इसके अलावा उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी कि उनका राज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपना राजपाट कैसे चलाया करते थे,
इसके अलावा अलग अलग राजा और उनके राज्य, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, उस दौर में हुए पॉलिटिकल इवेंट्स या फिर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस वक्त का जो क्लाइमेट है, तापमान है, या फिर कोई फेमाइन्स आकर गए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इन सारे कॉइन्स या फिर मेटल इमेजेस या फिर जो स्कल्पचर्स हैं उनसे या फिर कॉपर प्लेट से हमें जानकारी मिलती है। अभी इसके अलावा और भी कुछ हिस्ट्री के सोर्सेस हैं, जैसे कि रामायण है या फिर महाभारत है, पुराण है। इसके अलावा जो जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, है ना, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा जो इंडियन राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, या फिर जो फॉरेन ट्रैवलर्स है, जैसे यहाँ पर आपको चीनी ट्रैवलर दिख रहा है एक पुराने समय का, जो भारत में आकर हमारे यहाँ पर की सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह की सोसाइटी है, या फिर राजपाट कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, इनके बारे में वो ट्रैवलॉग्स लिखते थे। ट्रैवलॉग्स यानी क्या, इसे आप कह सकते हैं, आप जब कहीं पर घूमते हैं तो आप उस वक्त आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके बारे में आप लिख के रखते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं ट्रैवलॉग। इसे प्रवास वर्णन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री का, ओके। Writing of biographies of kings and dynastic histories mark an important step in Indian historiography. Harshacharit, written in the 7th century Common Era by Bana Bhatta, is King Harsha's biography. It portrays a realistic picture of the social, economic, political, religious and cultural life of the king's time. अब देखिए, जो बायोग्राफीज़ की राइटिंग है, फिर वो राजाओं की या फिर डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ की, राजघरानों की जो हिस्ट्री है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था हमारे इंडिया की हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि इंडिया के जो इतिहास के बारे में जो लिखना है उसमें एक ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था। और इसमें देखिए आप, बाना भट्टा, ये जो आपको दिख रहे हैं ये बाना भट्टा हैं, और उन्होंने राजा हर्ष, इनकी बायोग्राफी यानी कि इनका जीवन चरित्र लिखा था, हर्ष चरितम। ये देखिए, ये बुक है हर्ष चरितम। उसमें उन्होंने, इस बुक में उन्होंने एक रियलिस्टिक पिक्चर सामने रखा था, यानी कि एक उन्होंने एक सच्ची जो है उन्होंने उस दौर की एक पिक्चर जो है दुनिया के सामने रखी थी इस किताब के माध्यम से, कि उस समय सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी या फिर पॉलिटिकल है या फिर रिलीजियस या फिर कल्चरल लाइफ उस समय की कैसी थी राजा हर्ष के रूल के दौरान, इसके बारे में उन्होंने लिख कर रखा है। अभी हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है वो है हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिएवल पीरियड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये किताब है राजतरंगिनी, और इसे लिखा है कलाना ने। ये राजतरंगिनी, ये कलाना इस राइटर ने लिखी है। कलाना जो है इन्होंने ये जो किताब लिखी है, ये कश्मीर के जो राजा थे उनकी हिस्ट्री जो है इस किताब में लिखी हुई है, और ये 12वीं सेंचुरी में, 12th सेंचुरी सीई में लिखा है। और ये हमारे जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो कंसेप्ट्स हैं अलग अलग, उनसे बहुत नज़दीक जो है ये इनकी जो राइटिंग है वो क्यों है, देखिए। कलाना हिमसेल्फ सेज दैट he wrote the text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions। देखिए क्या कहा है कलाना ने, उसने कहा है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के कंसेप्ट के बहुत ही क्लोज है। उसका कारण है कि उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन करके जो है ये वेरियस सोर्सेस हासिल किए, मतलब बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई की पहले अलग अलग चीज़ों की। कौन सी चीज़ों की, जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स हैं, रिमेन्स ऑफ एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जो बची हुई बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई मूर्तियां हैं। इसके अलावा जो डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स हैं, राजघरानाओं के बारे में लिख कर रखे हुए कुछ किताबें हैं, या फिर जो लोकल ट्रेडिशंस हैं, इनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद में उन्होंने ये किताब जो है वो लिखी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इनकी जो राइटिंग है
वो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे बहुत नज़दीक हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन करना या फिर अलग अलग सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन हासिल करने के बाद इतिहास लिखना, हिस्ट्री राइटिंग करना, इसके बारे में हमने फर्स्ट पीरियड में पढ़ा था, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। उसमें आपको याद होगा अलग अलग जो स्कॉलर्स थे, फिर वो हमारे मिशेल फुको हो या फिर वोल्टेयर हो, ऐसे अलग अलग, या फिर हेगल हो, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि क्रिटिकली एग्जामाइन किए बगैर जो है कोई भी हिस्ट्री राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो कलाना ने ये सारी चीज़ें 12वीं सदी में कह कर रखी हैं और उन्होंने उसका अमल भी किया है, उस तरह से उन्होंने ये हिस्ट्री की राइटिंग भी की है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे हिस्टोरियंस जो है कितने प्रगल्भ विचार के, यानी अच्छे विचारों के होंगे। आगे हम देखते हैं मेडिवल पीरियड में जो हिस्टोरियंस थे मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में, कोर्ट माने दरबार, राजाओं का जो दरबार लगता था पहले, उस दरबार में जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो जो है उन पर अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का बहुत ज़्यादा असर था। मतलब अरेबिक और पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का असर था, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि वो जो है जो अरेबिक और पर्शियन स्टाइल से जो हिस्टोरियोग्राफी होती थी, यानी जो इतिहास का लेखन हुआ करता था, उस स्टाइल का जो है वो लेखन ये मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो उस स्टाइल का हिस्ट्री लिखा करते थे। ज़ियाउद्दीन बरानी रोट तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही। According to him, historians' duty is not only to record rulers' valor and policies of welfare, but also to write about rulers' failings and incorrect policies. Historians should take account of teachings of the wise and the learned and the saints on the cultural life of the people. अब यहाँ पर ज़ियाउद्दीन बरानी, ये हैं ज़ियाउद्दीन बरानी, इन्होंने तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही लिखी थी। उनके अनुसार हिस्टोरियन की ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ किसी राजा के वैलर के बारे में, यानी उसने क्या पराक्रम किए, क्या युद्ध लड़े, सिर्फ इसके बारे में लिखना ही उसकी ड्यूटी नहीं है, या फिर उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वेलफेयर की, लोगों के लिए उसने क्या किया, सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक हिस्टोरियन का काम है, एक इतिहास लिखने वाले का काम है कि वो क्या करें कि वो राजा की जो फेलिंग्स हैं, राजा कौन कौन सी चीज़ों में फेल हुआ, इसके बारे में भी लिखे, उसकी जो इनकरेक्ट पॉलिसीज़ हैं, गलत जो पॉलिसीज़ उसने अपनाई, उसके बारे में भी लिखे। इसके अलावा उसको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो जब हिस्ट्री लिख रहा है जिस पीरियड की, उस दौर में जो वाइज यानी कि जो होशियार लोग थे या फिर जो पढ़े लिखे लोग थे, इसके अलावा जो कल्चरल लाइफ पर लोगों के इफ़ेक्ट डालने वाले जो संत लोग थे, उनके बारे में भी वो जो कहते हैं उसका भी जो है उसका भी अपने राइटिंग में इंक्लूजन जो है करना चाहिए, ऐसा कहना था ज़ियाउद्दीन बरानी का। आगे देखिए, फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट्स प्रेजिंग द एम्परर्स, देखिए प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लॉयल्टी बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, सो दे एडेड सूटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटिफुल पिक्चर्स। अभी देखिए मुग़ल कोर्ट्स में, मुग़ल राजाओं के दरबार में जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहास लिखने वाले लोग थे, उनके लिए राजा के प्रति अपनी जो लॉयल्टी है उसको, यानी कि प्रामाणिकता जो है उसको दिखाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उस पीरियड में। तो वो क्या करने लगे, वो पोएटिक कोट्स यानी कि कुछ ऐसे तकिया कलाम जिसे हम कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे वाक्य लिखने लगे, या फिर बहुत ही सुंदर ऐसे पिक्चर्स जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे कुछ पिक्चर्स जो है वो क्या करने लगे, अपने हिस्ट्री राइटिंग में ऐड करने लगे। आगे देखिए, बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर wrote an autobiography, Tuzuk-e-Babri. It contains battles he fought, minute observations, and various regions and cities he traveled. He also included the local economy, customs, and the flora. बाबर जो मुग़ल एम्पायर का फाउंडर था, उसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था तुजुक-ई-बाबरी। इस किताब में उसने जो लड़ाइयाँ लड़ी,
या फिर जो उसने जो ऑब्जर्वेशंस किए जिस भी सिटी या फिर अलग अलग इलाकों से वो घूमा, वहाँ पर की इकोनॉमी कैसी है, वहाँ के कस्टम्स कैसे हैं, यानी कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं, या फिर वहाँ पर के पेड़ पौधे कैसे हैं, या जंगल है या फिर पहाड़ी इलाका है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है उसने अपनी इस किताब में, जो कि तुज़ुक-ई-बाबरी के नाम से जानी जाती है, उसमें उसने लिख कर रखा। आगे हम देखते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल इसने अकबरनामा जो है वो लिखी थी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी के व्यू पॉइंट से। उसकी जो मेथड थी वो मेथड थी कि वो क्या करता था, ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता था और उनकी स्क्रूटिनी जो है वो करता था। अभी इसकी स्क्रूटनी कैसे करता था, एज डिवॉइड ऑफ बायस एंड हेंस रियलिस्टिक। उसकी स्क्रूटनी वो किस तरह करता था, वो बिना किसी भेदभाव के जो है विदाउट एनी बायस, किसी एक पक्ष को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए बगैर वो क्या करता था, एक रियलिस्टिक ऐसी हिस्ट्री वो लिखता था। इसीलिए ये कहा गया है यहाँ पर कि उसकी जो ये किताब है अकबरनामा, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन से व्यू पॉइंट से वो उसका इम्पॉर्टेंट है, इस व्यू पॉइंट से कि वो क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी के व्यू पॉइंट से इसकी राइटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसने किसी को भी ऐसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जो सही हिस्ट्री है वही हिस्ट्री उसने लिखी थी। अभी आगे देखते हैं हम बखर। अभी देखिए बखर क्या है। बखर इज एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ medieval times. It contains eulogies of the heroes and stories of historic events, battles and lives of great men. देखिए यहाँ पर क्या है, जो बखर है, बखर एक इम्पॉर्टेंट ऐसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है मेडिवल पीरियड की। और इसमें क्या क्या लिखा है, यूलॉजीज़ हैं इसमें। यूलॉजीज़ क्या होती हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है और उसका जो अंतिम संस्कार होता है, उस समय जो वो एक भाषण या स्पीच दी जाती है उसे कहा जाता है यूलॉजीज़। ओके, इसके अलावा यूलॉजीज़ ऑफ द हीरोज़ एंड स्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, जो घटनाएं घटी, हिस्टोरिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, या फिर जो बैटल्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, या फिर जो ग्रेट मैन है लाइक शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, या जो पेशवाज हैं, इनकी जो लाइफ्स हैं उनके बारे में जो है इन्होंने लिख कर रखा था। इसे बखर कहा जाता है। अभी इसमें सभासद बखर, इस सभासद बखर जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभासद बखर लिखी थी कृष्णाजी अनंत सभासद ने, जो है इनका नाम है ये। तो इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड के बारे में जो है इन्होंने अपने बखर में लिख कर रखा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है इनके इस सभासद बखर से। इसके अलावा भाऊसाहेबांची बखर और पानीपतची बखर, भाऊसाहेबांची बखर और पानीपतची बखर जो है ये डिस्क्राइब करती है बैटल ऑफ पानीपत को। पानीपत की बैटल किस तरह से हुई थी। ये दो बखर, ये भाऊसाहेबांची बखर और कौन सी दूसरी, पानीपतची बखर, ये वाली, ये दो जो बखर हैं, ये पानीपत की जो फेमस लड़ाई है वो कैसे हुई इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा जो तीसरी है वो है होळकरांची कैफियत, होळकरांची कैफियत। इसमें इंफॉर्मेशन दी है, होळकर जो थे एक मराठा सरदार थे वो, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा मराठा रूल के दौरान, इसके बारे में होळकरांची कैफियत में लिख कर रखा है। अभी बखर के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे कि बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, इसके अलावा डायनेस्टिक हिस्ट्रीज। बायोग्राफीज ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं का जीवन कैसा था, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, इसके बारे में लिखा हुआ होता है इसमें। इसके अलावा डायनेस्टिक हिस्ट्री यानी कि कोई राजघराना, उसके बारे में जिसमें अलग अलग जो राजा हुए, पूरी इसके बारे में इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शंस ऑफ इवेंट्स, के घटनाएं कैसी घटी, इसके आधार पर एक अलग तरह से बखर लिखी जाती है। या फिर हिस्ट्री ऑफ अ सेक्ट, किसी एक पंथ के बारे में हिस्ट्री लिखना। ऑटोबायोग्राफीज़, किसी का जीवन चरित्र लिखा जाना। या फिर रिगार्डिंग ग्रीवियंसेस, लोगों की क्या कठिनाइयाँ हैं उसके बारे में अगर कुछ
घटनाएं घटी हैं तो उसके बारे में लिखना। इसके अलावा बेस्ड ऑन माइथोलॉजीज़ या फिर जो प्राचीन घटनाएं घटी उनके बारे में, या फिर आखिरी है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय किंग, राजा की तरफ से अपना राज कैसे चलाया गया उसके बारे में लिखना। ऐसे कई सारे वेरियस टाइप्स होते हैं बखर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। अभी देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे, जो ब्रिटिश इतिहास लिखने वाले लेखक थे, उन्होंने हमारे देश के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन बहुत गलत तरीके से लिखी थी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको उन्होंने इस तरह से लिखा था जिसकी वजह से वो जो हमारे देश पर राज कर रहे हैं, हमें जो लूट रहे थे, उसको वो दुनिया के सामने सही साबित कर सके। और इसीलिए उन्होंने झूठा इतिहास लिखने की उन्होंने कोशिश की। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिश रूल था उसमें कई सारी हमारी जो एंशिएंट साइट्स हैं उनको एक्सकेवेट किया गया, यानी कि उनका उत्खनन किया गया। और ये हुआ सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ये हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, उनके सुपरविजन में, उनकी देखरेख में ये सब हुआ। और वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें जो जिन जगहों के बारे में लिखा हुआ था उन जगहों को चुना सबसे पहले एक्सकैवेशन या फिर रिसर्च करने के लिए। इसके बाद में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये अब आज के पाकिस्तान में ये मौजूद हैं, ये जगह हैं। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है जिसे हम अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसको सिंध संस्कृति भी इसे कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाके में ही, बस इनके इलाके में ही इसे ढूंढा गया। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसको डिस्कवर किया गया था सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में। सर जॉन मार्शल की ये तस्वीर है। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड टू 3rd मिलेनियम BC और इवन अर्लियर। और इस शोध की वजह से हम जो प्राचीन काल है, एंटिक्विटी माने प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम, जो प्राचीन काल है, एंशिएंट जो टाइम है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। या फिर वो 3rd मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा, या फिर वो उसके पहले की भी हो सकती है। ठीक है, कई सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमारे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिखा, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स थी, द राइटिंग्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन उनकी राइटिंग्स इस तरह की थी उनकी राइटिंग से हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि उनकी जो राइटिंग थी वो उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी। ब्रिटिश लोगों की जो कॉलोनियल पॉलिसी, उसके अनुसार ही उन्होंने उसकी राइटिंग की। यानी उन्हें क्या करना था, उन्हें दुनिया के सामने ये दिखाना था कि इंडियंस पर हम रूल कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई कल्चर्ड या फिर सिविलाइज्ड ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसा उन्हें जंगली लोग हैं, ऐसा उन्हें दुनिया के सामने दिखाना था। इसलिए उन्होंने झूठा इतिहास दुनिया के सामने रखा। अभी देखिए 3 volumes of the history of British India were written by James Mill and it was published in 1817। ये है जेम्स मिल और उनकी ये है किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसके 3 वॉल्यूम्स जो है वो पब्लिश हो चुके हैं। 3 वॉल्यूम माने जैसे फिल्में आती हैं अलग अलग पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, वैसे ही इनकी किताबें भी जो है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में जो है पब्लिश की गई थी 1817 में। ठीक है, और जेम्स मिल ने लिखी हुई ये जो किताब है ये पहली किताब थी। इट वॉज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन अब्सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। इसमें हमें बहुत ही आसानी से ये समझ में आता है कि इसमें एक पर्सपेक्टिव, बिना पर्सपेक्टिव के जो है इसमें हिस्ट्री लिखी गई है, और प्रिजुडाइज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर। और हमारे इंडियन कल्चर के बारे में एक प्रिजुडाइज है, माने
अपने दिमाग में एक पहले ही उन्होंने एक आइडिया रखा था अपने दिमाग में तैयार करके कि नहीं नहीं नहीं, इंडियन लोग तो ऐसे ही हैं, फिर सच कुछ भी हो। उनको यही चाहिए था कि वो क्या करें कि इंडिया के बारे में गलत हिस्ट्री जो है वो दुनिया के सामने रखे। इसी एक अपने दिमाग में विचार रखकर उन्होंने इतिहास का लेखन किया था। इसके बाद में द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट वॉज रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये किताब है और ये है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ठीक है। ये गवर्नर थे बॉम्बे के, पहले इसे बॉम्बे कहा जाता था लेकिन आज हम इसे मुंबई कहते हैं। ये पब्लिश की गई थी 1841 में, ठीक है। इसके बाद में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1818 टू 1822 ग्रैंड डफ रोट अबाउट मराठा हिस्ट्री। ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री के बारे में किताब लिखी और इसे उसने नाम दिया हिस्ट्री ऑफ द महाराठास। ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उसने नाम लिखा है, लेकिन उन्हें यह कहना है कि हिस्ट्री ऑफ मराठास, ओके। ही रोट अ बुक हिस्ट्री ऑफ मराठास। हिज राइटिंग ऑल्सो शोज द ब्रिटिश इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। इसकी भी राइटिंग से हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि उसका झुकाव जो है वो भारत की जो संस्कृति थी या भारत का जो इतिहास था उसको वो कंडेम ही करता था। कंडेम करना मतलब उसके बारे में भला बुरा ही उसमें बुरा ही भला नहीं, उसमें बुरा ही उसने लिखकर रखा था। जो उनकी पॉलिसी थी उसी अनुसार उसने राइटिंग्स की। इसके बाद में कॉलोनल टॉड, इनकी जो राइटिंग है ये भी ब्रिटिश इंक्लिनेशन दिखाती है हमारे इंडिया के कल्चर और हमारी हिस्ट्री को कंडेम करने की, यानी कि जैसे पिछले राइटर ने किया था वही काम इन्होंने भी कंटिन्यू किया। इन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखा था। ये है उनकी किताब जेम्स टोड की, ये है कर्नल टोड, जेम्स टोड, ये उनका पिक्चर है। इसके बाद में द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शो अ समवॉट इम्पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो हैं, ये जो बैठे हुए हैं, ये हैं विलियम विल्सन हंटर। इन्होंने लिखी है किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इस किताब में उन्होंने जो है कुछ हद तक उन्होंने एक इम्पार्शियल ट्रीटमेंट दी है जो भी उन्होंने लिखा है, यानी कि पूरी तरह से इन्होंने न्याय नहीं किया, सच नहीं लिखा, लेकिन कुछ हद तक इन्होंने बाकी के जो लेखक हैं उनसे थोड़ा सा उन्होंने इम्पार्शियल ट्रीटमेंट अपनी राइटिंग में, हिस्ट्री राइटिंग में दिखाई है, ऐसा कहा गया है। और इसके बाद में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और जो हमारे दूसरे हैं विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, ये जो हमारे 2 इंडियन हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने एक टास्क अपने हाथ में लिया, इन्होंने एक काम अपने हाथ में लिया। इन्होंने क्या किया, जो ग्रैंड डफ है इसकी जो राइटिंग्स हैं उसको एक्सपोज करने का काम जो है इन्होंने किया। ये है V.K. राजवाड़े, ठीक है, और दूसरे हैं नीलकंठ जनार्दन कीर्तने। मैंने सर्च किया लेकिन उनकी पिक्चर मैं हासिल नहीं कर पाया। तो ये जो हमारे 2 इंडियन राइटर्स थे, इन्होंने अपने हाथ में एक काम लिया कि वो क्या करें, जो झूठ लिखा गया था हमारे देश के इतिहास के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, उसको दुनिया के सामने लाए। और ये जो झूठी जो एक पिक्चर क्रिएट की गई थी दुनिया के सामने, उसको जो है गलत साबित करें और सच्चा इतिहास हमारा दुनिया के सामने, एक अच्छी पिक्चर जो सही है उसको दुनिया के सामने रखे। ये काम जो है इन दोनों ने अपने हाथ में लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।